Good morning, my dear students. I hope you all are fit and fine. Today, we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, The Magic Rap. So, all of you, please get ready with your literature book and open page number 38, chapter 5, The Magic Rap. Magic means jadui and wrap means cover, or you can say a shawl. Okay, a cloth which is used to wrap our body. So this chapter is about the magic wrap, एक जादुई shawl. Today we are going to discuss about popular tribe of Assam. So today हम डिस्कस करेंगे एक ट्राइब है असम में, उनके बारे में, एंड इस ट्राइब का नाम है गारो ट्राइब. एंड ट्राइब का मतलब क्या होता है? जनजातियाँ. ओके. The state of Assam is home of many tribes. The following is folktale popular among the Garo tribe of Assam. The Garos call themselves Chikmande, meaning men of the hills. They believe that their original homeland was Tibet. Nobody knows when the story was first told, but it has been doing the rounds for generations. That means एक स्टोरी में आप पढ़ेंगे असम ट्राइब के बारे. असम में एक गारो ट्राइब होते हैं, उनके बारे में. मीन्स असम में एक जनजातियाँ होती हैं जिनका नाम होता है गारो ट्राइब. ओके. सो ये स्टोरी है गारो ट्राइब के बारे में कि वो पहले कैसे रहते थे, उनके कल्चर्स कैसे होते थे, ट्रेडिशंस कैसे रहते थे, उनके हाउस का जो स्ट्रक्चर्स होता था वो कैसा होता था. सो जो उनकी लिविंग होती थी वो कैसी होती थी. सो दैट we will discuss in this chapter about the Garo tribe, and the story is from Assam. You can see a picture on a screen. Garo tribe, they are called Garo tribe, means जनजातियाँ. इन जनजातियों का नाम था गारो. Now all of you please open your literature book and take out page number 45. On page number 45 on the top it is written, first para, in a village of Assam there once lived a chief of the Garo tribe. His ancestors had been chiefs before him, so he was a rich man. His house was made of sturdiest bamboo in the land, while its door and windows were draped with finest cane matting. Silk carpets lay on the floor and copper lamps gleamed from recesses in the wall. So there was a village in Assam and there lived a chief of Garo tribe. मीन्स एक असम में एक विलेज है एंड उस विलेज में एक चीफ रहते थे. सो वो कौन से ट्राइब के थे? गारो ट्राइब के थे. उनके जो एंचेस्टर्स है, एंचेस्टर्स मीन्स फोर फादर और यू कैन से पूर्वज. सो उनके जो पूर्वज वहाँ पे जो थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे. सो ऑब्वियसली अगर आपके पूर्वज रिच होंगे देन आप भी रिच होंगे. सो जो उनके पूर्वज थे वो बहुत ज़्यादा रिच थे. सो वहाँ का जो चीफ था वो बहुत ज़्यादा रिच मैन था. एंड उनके जो हाउसेस थे वो स्ट्रॉन्ग बम्बू से बने थे. एंड जो उनके डोर्स एंड विंडोज़ थे उन पे एक क्लोथ्स टाइप का ड्रैप, मीन्स वो कवर्ड थे डेकोरेटेड क्लोथ से. मीन्स उन क्लोथ पे कुछ डेकोरेशंस किए गए थे. एंड उनके फ्लोर पे सिल्क कारपेट्स रहते थे. एंड उनके वॉल पे एक रिसेस मीन्स एक बॉक्स, एक शेप होता है. और शेप इन अ वॉल ऑफ रूम मीन्स वॉल में एक शेप बनाया जाता है. सो वहाँ पे लैम्प्स रखे जाते थे. नाउ सी द सेकेंड पैरा. द चीफ एंड हिज वाइफ led a very comfortable life indeed. They loved their home and the beautiful wooded country in which they lived. But most of all, they loved their daughter. She was the only child, good-natured, lovely to look at. The chief and his wife doted on her. That means उस विलेज में चीफ अपनी वाइफ के साथ रहते थे एंड वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जीते थे बिकॉज दे वर रिच. सो ऑब्वियसली दे विल लीव अ कंफर्टेबल लाइफ. सो वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे एंड वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे. उनके पास उनकी एक ही चाइल्ड थी. सो वो उनकी एक बेटी थी, एक डॉटर थी. वो बहुत ब्यूटीफुल थी, गुड नेचर की थी एंड लवली चाइल्ड थी. सो जो चीफ
एंड उनकी जो वाइफ एंड उनकी जो बेटी, तीनों साथ में रहते थे एंड वो बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीते थे एंड दे ऑल लव देयर कंट्री एंड वो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते थे। The mother said something under her breath. Then, unlocking a stout wooden casket, she took out a wrap made of silk and embroidered with 1,000 flowers in all the colors of the rainbow. They shone so, they dazzled the eye. "Oh, mother!" cried the girl, stretching out her hand eagerly to touch the wrap. But her mother snatched it away. "Don't!" she cautioned. "Don't you touch that wrap before you know the story behind it. This wrap was a gift from a goddess to my great grandmother on her wedding day. It has since been handed down from mother to daughter, but it is no ordinary wrap. Before you touch it, you must chant a magic spell that I shall teach you. Remember, a great disaster shall befall anyone who touches the wrap without first chanting the spell." इन दिस लाइन जो चीफ की वाइफ रहती हैं वो अपने डॉटर को उनके वेडिंग पे एक बॉक्स देती हैं, मीन्स एक वुडन बॉक्स देती हैं एंड उस बॉक्स में एक सिल्क रैप रहता है एंड जैसे ही उनकी बेटी उस रैप को देखती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो कहती है "ओ मदर", मीन्स वो बहुत ज़्यादा उस गिफ्ट को देख के खुश हो जाती है बिकॉज वो बहुत डिफरेंट कलर्स का बना हुआ था रैप एंड वो बहुत शाइन कर रहा था। सो वो उसे देख के बहुत खुश हो जाती हैं एंड वो उसे टच ही करने जाती रहती हैं बट तुरंत उनकी माँ को बोलती है कि "डोंट यू टच दैट", मीन्स आप उस रैप को मत टच करो अभी, पहले आपको पता होना चाहिए उस रैप के पीछे उसकी स्टोरी क्या है बिकॉज ये कोई ऑर्डिनरी रैप नहीं है, मीन्स ऐसा कुछ वैसा रैप नहीं है, ये ऐसा रैप है जिसमें कुछ मैजिकल पावर्स हैं, सो आप ऐसे ही उसे टच नहीं कर सकते हैं। देन उनकी जो माँ है उनको स्टोरी बताती है उस रैप की कि ये जो रैप है ये जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है, मीन्स मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैं तुम्हें दे रही हूँ तुम्हारे वेडिंग पे एंड ये मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर को मिला था उनके वेडिंग पे जो गॉड ने दिया था। सो इस मैजिक इस रैप के अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं, सो आप इसे ऐसे ही टच नहीं कर सकते, इसे टच करने से पहले आपको कुछ चैंट करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी सिखाऊंगी, मीन्स आपको कुछ मंत्र मीन्स कुछ टाइप ऑफ कुछ चैंटिंग करनी पड़ेगी, ओके कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे, उसे मंत्र बोलने के बाद ही आप उसको इस रैप को टच करना है। अदरवाइज अगर आप इसे टच करते हो बिना कोई मंत्र बोले या कुछ स्पेल किए चैंट किए देन कोई बहुत बड़ा कोई डिजास्टर हो सकता है, मीन्स कोई बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, ओके। So now students, I will end my class till here. Your homework for today is to read this chapter. Thank you students. Have a nice day.